آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 19 سپٹمبر 2025 اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ پاکستان کے اعلان سے ہلی دنیا، سعودی عرب کو دے سکتا ہے نیوکلیئر بم بنانے کی ٹیکنالوجی، اسلامک ناٹو کی بنیاد پڑنے کا اشارہ۔ سیریائی صدر احمد الشرا کے قتل کی سازش ناکام، عراق نے بچائی جان۔ غزہ جل رہا ہے، اسرائیلی فوج نے شہر کو بنا دیا جہنم، دنیا بن گئی خاموش تماش بین۔ غزہ کا ٹائمر چالو، 72 گھنٹے کا فیول بچا، ہاسپٹل اور پانی سب بند ہونے کی کگار پر۔ اسرائیل کا بڑا دعویٰ، 4,80,000 لوگ غزہ سٹی سے جبری بے دخل۔ جرمنی میں قانونی بغاوت، چانسلر اور منسٹرز پر غزہ جینوسائیڈ میں مددگار ہونے کا مقدمہ درج۔ یونیفل کی وارننگ، اسرائیل کی لبنان اسٹرائکس، UN ریزولوشن کی کھلی خلاف ورزی۔ ہانگ کانگ میں ورلڈ وار سیکنڈ کا بم ملا، ہزاروں لوگ ایویکویٹ، شہر دہشت میں۔ اور IAEA میں ایران کا الرٹ، نیوکلیئر سائٹس پر حملہ ہوگا تو گلوبل امن ہل جائے گا۔ یہ تھیں کچھ ہیڈ لائنز، ان کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں۔ آزاد بول انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد اور یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو۔ دنیا بھر کی خبریں، لیٹسٹ خبریں لانے میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے تو معذرت۔ شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ پاکستان نے اب صاف اعلان کر دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اس کی ایٹمی طاقت بھی سعودی عرب کو مہیا کروائی جائے گی۔ یہ خبر پورے مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں زلزلہ لانے والی خبر ہے دوستو، لہٰذا اسے ڈیٹیل میں سمجھ لیجئے کیونکہ اسلامک ناٹو کی بنیاد پڑنے کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ خبر۔ ایران کی مہر نیوز ایجنسی نے 19 ستمبر کو لکھا، پاکستان کے وزیر دفاع یعنی کہ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں کہا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب سعودی عرب کو اس نئے ڈیفنس پیکٹ کے تحت حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے سعودی عرب یا پاکستان پر حملہ کیا تو دونوں مل کر جواب دیں گے۔ سوچئے، یہ سمجھوتا ریاض میں ہوا جہاں ولی عہد محمد بن سلمان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہاتھ ملا کر اتحاد پر مہر لگا دی۔ دونوں کے بیچ ایک ڈیفنس ڈیل ہوئی، ہم کل آپ کو بتا چکے ہیں۔ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں صاف کہا گیا کہ کسی ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ مانا جائے گا۔ خواجہ آصف نے یہ بھی زور دے کر کہا کہ پاکستان 1998 سے ایٹمی قوت رکھتا ہے اور دنیا نے ہمیشہ اسے ایک ذمہ دار نیوکلیئر پاور مانا ہے۔ ان کی باتوں میں ایک طنز بھی چھپا تھا اور یہ طنز تھا اسرائیل کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تو IAEA کی تفتیش مانتا ہے مگر اسرائیل کسی کو اپنے یہاں جھانکنے نہیں دیتا کہ وہ کیا بنا رہا ہے۔ سوال یہ اٹھا کہ کیا امریکہ کو اس ڈیل کی اطلاع دی گئی؟ آصف کا جواب تھا، کسی تیسرے ملک سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ امریکہ نے تو خود ایسے ڈیفنس پیکٹس کئی ملکوں کے ساتھ کر رکھے ہیں، یہ خواجہ آصف نے کہا۔ سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر خالد بن سلمان نے ایکس پر ٹویٹ کیا، سعودی عرب اور پاکستان کسی بھی دشمن کے خلاف ایک مورچہ بن کر رہیں گے، ہمیشہ اور ہر حال میں۔ دوستو، اب بڑی بات یہ ہے کہ اس ڈیل کا مطلب صرف تلواروں اور ٹینکس تک نہیں بلکہ پاکستان کی ایٹمی چھتری بھی ریاض کے اوپر تن سکتی ہے۔ اور میرے دوستوں، یہ جملہ ہی بہت ہے مڈل ایسٹ کی سیاست ہلا دینے کے لیے۔ دوسری طرف ہندوستان نے بھی سعودی عرب کے ساتھ اپنی وائڈ رینجنگ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو یاد دلایا اور کہا کہ رشتے گہرے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اب تصویر یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان ایک نئے نیوکلیئر شیڈو الائنس میں آ گئے ہیں اور امریکہ، اسرائیل، یہاں تک کہ چائنا تک، سب کی آنکھیں اور نگاہیں اسی ڈیفنس پیکٹ پر جم گئی ہیں۔ صاف ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی اس ڈیفنس ڈیل نے بہت سی طاقتوں اور دیوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ احمد الشرا کے قتل کی کوشش کو ناکام کر دینے سے جڑی ایک خبر سامنے آئی ہے، بڑی خبر ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ الشرا کو اس کے اپنے ہی لوگوں نے قتل کرنے کا پلان بنایا تھا۔ دوستو، لبنانی اخبار النہار نے ایک دھماکے دار رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ عراق کی خفیہ ایجنسی نے کچھ مہینے پہلے دمشق کو وہ اہم اطلاع دی جس نے سیریا کے صدر احمد الشرا اور جولانی پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ یہ خبر النہار سے لے کر دنیا کے اور اخباروں نے بھی چھاپی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ پلان تقریباً 6 مہینے پہلے تیار کیا گیا تھا۔ اسی وقت سیریا کے الگ الگ شہروں میں دھماکے کرنے کی کوششیں بھی چل رہی تھیں مگر عراق سے ملی انفارمیشن نے پورا کھیل پلٹ دیا۔ النہار کو ایک سینئر عراقی سیکیورٹی سورس نے بتایا کہ یہ سازش دراصل الشرا کے موومنٹ حیات تحریر الشام یعنی کہ STS کے وہی ناراض اور باغی ہو چکے پرانے لوگ بنا رہے تھے جو پہلے شرا کے ساتھ تھے، لیکن جب الشرا نے سیریا کی کمان سنبھالی تو ان کی پالیسی اور طریقے سے وہ لوگ خوش نہیں تھے۔
यानी कहानी साफ है कि प्रेसिडेंट अल-शरा को उनकी पुरानी जमात के ही भटके हुए लोग मारना चाहते थे, लेकिन पड़ोसी मुल्क इराक ने वक्त रहते हाथ बढ़ाकर सीरिया के सदर को बचा लिया। अब गजा की खबर। गजा जल रहा है और दुनिया चुपचाप देख रही है। इस्राएली फौज अब गजा सिटी के दिल तक पहुंच चुकी है। तन्हाई, भूख, प्यास और धमाकों से तबाह लोग समंदर के साहिल की तरफ धकेले जा रहे हैं। लाखों लोग घर छोड़कर सड़कों पर बेबस चल रहे हैं। अल जजीरा से बात करते हुए अल-अक्सा मार्शिया हॉस्पिटल के स्पोक्स पर्सन खलील अल दकरान रो पड़े। उनका कहना है, इसराइल की पॉलिसी साफ है, भूख से मारो। सबसे पहले बच्चे मर रहे हैं, फिर प्रेग्नेंट औरतें और फिर बुजुर्ग। उन्होंने कहा, हालात इतने दर्दनाक हैं, फिर भी नॉर्थ गजा के लोग अब भी ये कह रहे हैं कि मौत कबूल है, मगर घर छोड़कर नहीं जाएंगे। पूरा गजा सिटी अब भी लगातार बमबारी, ड्रोन अटैक और ब्लास्ट से तहस नहस हो रहा है। दोस्तों, मोहल्ले के मोहल्ले उड़ाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स बस नाम के बच्चे हैं। लोगों के पास न दिन में सुकून है, न रात को नींद। छतों पर बम बरस रहे हैं और इसराइल हर रोज ड्रोन से मैसेज भेजकर, पर्चे गिराकर ये कह रहा है कि जुनूब में चले जाओ, गो टू द साउथ। लेकिन जुनूब पहले से ही लाशों और बेघर खानदानों से भरा पड़ा है। लोग कहाँ जाएं? और जो लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ चले भी जाते हैं, वो 20 किलोमीटर पैदल सफ़र करते हैं, अपने बच्चे, अपना सामान कंधे पर उठाकर। और फिर अल-दरकान की वो चीख गूंजती है जो पूरे गजा का दर्द बन चुकी है। गजा जल रहा है और दुनिया बस देख रही है। क्यों देख रही है, किसी को नहीं पता। दोस्तों, जब खाने के बाद डकार आती है तो मैं कभी कभी शर्मसार हो जाता हूँ खुद में। जब कभी थोड़ा सा भी पैदल चलता हूँ तो सोचता हूँ, इस गर्मी और उमस में गजा के लाखों लोग अपने कंधों पर कैसे पूरे घर का सामान ढोकर बार बार पैदल चल रहे होंगे। अपने घर को देखता हूँ मैं तो सोचता हूँ कि गजा के फ़लस्तीनी भाई बहन अपने तबाह हो चुके घर को देखकर क्या सोचते होंगे। कभी कभी सोचता हूं कि मैं सोचता ही क्यों। गजा जल रहा है और दुनिया बस देख रही है, और उस दुनिया में मैं भी शामिल हूं। सच है ये। एक और खबर है गजा से। गजा का ईंधन, गजा का फ्यूल, डीजल, पेट्रोल 72 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। हॉस्पिटल्स, पानी और ज़िंदगी सब दांव पर लगी है। गजा सिटी से अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में अमजद शावा, जो पैलेस्टीनियन एनजीओज नेटवर्क के हेड हैं, उन्होंने एक खौफनाक अलार्म बजा दिया। कहा, गजा में अब सिर्फ 72 घंटे का फ्यूल बचा है। अगर सप्लाई ना आई तो हालात सारे लेवल पर तबाही मचा देंगे। शावा ने बताया कि 10 दिन से फ्यूल नहीं आया गजा में, जिसकी वजह से इंसानी मदद की सारी कोशिशें रुक गई हैं। हॉस्पिटल्स पहले ही जंग से टूटी हालत में हैं। फ्यूल ख़त्म हुआ तो वेंटिलेटर और ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ जाएंगे। पानी की सप्लाई रुक जाएगी। लाखों लोग प्यास और बीमारियों से मरने लगेंगे। टेलीकॉम सिस्टम बैठ जाएगा। गजा सिटी बाकी दुनिया से कट जाएगी। ये सब हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि ये सिचुएशन सिर्फ खतरा नहीं, बल्कि पूरी आबादी को मौत की तरफ धकेलना है। मतलब ये कि 72 घंटे का टाइमर चल पड़ा है, टिक 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 टिक, और गजा की हर सांस अब उस टाइमर पर टिकी है। दुआ कीजिए, मैं न जाने कितना आपसे छुपा रहा हूं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस्राएली फौज का दावा है कि गजा सिटी से 4,80,000 लोग बेघर होकर भाग चुके हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक इस्राएली फौज ने कहा है कि अगस्त के आखिर से अब तक करीब 4,80,000 फ़लस्तीनी गजा सिटी छोड़कर साउथ की तरफ भाग चुके हैं। गौरतलब है कि अगस्त के आखिर तक यूएन का अंदाज़ा था कि गजा सिटी और उसके इलाकों में तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं। 4,80,000 चले गए, आधे लगभग। इसराइल ने ज़मीनी हमला शुरू करने से पहले ही गजा सिटी के हर इलाके में जबरी निकासी यानी फोर्स्ड एक्सपल्शन के हुक्मनामे जारी किए थे। यानी सबसे बड़े शहरी मरकज़ को कब्जे में लेने के लिए पूरी आबादी को पहले उजाड़ा गया, और फिर अब उनके इलाकों को टैंकों और बमों से रौंदा जा रहा है। जर्मनी में एक बड़ी कानूनी बगावत उठी है। बर्लिन में जर्मन वकीलों के एक ग्रुप ने बाकायदा क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी है और सीधे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और वजीर खारजा योहान वेडफुल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम है गजा में इसराइल की तरफ से चलाई जा रही जेनोसाइड की पॉलिसी में मददगार बनने का। सिर्फ यही नहीं, इस शिकायत में जर्मनी के साबिक चांसलर ओलाफ शोल्स और साबिक वजीर खारजा
अन्नालेना बैरबॉक का नाम भी शामिल है। बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक वकील नादिजा समूर ने साफ कहा, फ़लस्तीनी आवाम पर हो रहा कत्लेआम तकरीबन 2 साल से लाइव स्ट्रीम हो रहा है। अब वक्त आ गया है इंसाफ और अकाउंटेबिलिटी का। मौजूदा और पिछले हुक्मरान इस जेनोसाइड में शरीक हैं, ख़ास तौर पर हथियारों के उन एक्सपोर्ट्स के ज़रिए जो गज़ा के बेगुनाहों पर बरसे। दोस्तों, मतलब साफ है, जर्मनी के हुक्मरानों पर अब सिर्फ सियासी नहीं बल्कि कानूनी घेरा भी सख्त होता जा रहा है। साउथ लेबनान से एक बड़ी खबर है। यूएन की पीस कीपिंग फोर्स यूनिफिल, उसने इसराइल की ताज़ा एयर स्ट्राइक को साफ तौर पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1701 की खुली खिलाफ वर्जी बता दिया है। यूनिफिल का कहना है कि पिछली रात इसराइल की स्ट्राइक्स ने न सिर्फ कानून तोड़ा बल्कि ये स्ट्राइक्स वो नाजुक अमन व सुकून भी तबाह कर रही हैं जो पिछले नवंबर में बड़ी मुश्किल से कायम हुआ था। यूनिफिल ने यह भी बताया कि इन हमलों के दौरान यूएन पीस कीपर्स को भी शेल्टर में छुपना पड़ा, यानी इसराइली बमबारी ने लेबनानी फौजियों, यूएन पीस कीपर्स और आम लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। कोई सजा देगा इसराइल को? पीस कीपिंग फोर्स ने इसराइल से साफ कहा है कि फौरन स्ट्राइक्स बंद करो, लेबनान की सरहद से पूरी तरह से पीछे हटो। यूनिफिल और लेबनानी आर्मी अभी भी रोजाना ग्राउंड पर काम कर रहे हैं ताकि ब्लू लाइन के दोनों तरफ हालात काबू में रहें। ब्लू लाइन है वहां पर लेबनान और इसराइल के कब्जे वाले इलाकों के बीच। मगर इस तरह के हमले लोगों के भरोसे को तोड़ रहे हैं कि कभी इस मसले का कोई गैर फौजी हल भी निकल सकता है। लोगों को अब यकीन नहीं रहा। दूसरी आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 2 का छोड़ा हुआ एक बम हांगकांग में आज अचानक मिल गया और अब हजारों लोगों को फौरन इलाका खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये बम तकरीबन 1.5 मीटर लंबा और 450 किलो वजनी है और सबसे खतरनाक बात यह है अब भी पूरी तरह फंक्शनल है। ये बम यानी काम करने की हालत में है, यानी फटने की हालत में। इस बम को डिसमेंटल और डिस्पोज करने में बड़ा रिस्क है क्योंकि ब्लास्ट हो सकता है, इसीलिए इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान एक्टिवेट करना पड़ा। मतलब साफ है, हांगकांग की सड़कों पर आज फिर वर्ल्ड वॉर की दहशत उतर आई है और हजारों लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा है। अब एक अहम खबर वियना से। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की जनरल कॉन्फ्रेंस में एक सख्त वार्निंग दी है। ईरान के एनवॉय रजा नजफी ने साफ कहा है कि न्यूक्लियर साइट्स पर हमले और धमकियां न सिर्फ गैर कानूनी हैं बल्कि पूरी दुनिया के अमन और नॉन प्रोलिफरेशन सिस्टम के लिए बड़ा खतरा है। नजफी ने IAEA के 69वें सेशन में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पेश किया। इसमें साफ तौर पर दोबारा ये बात दर्ज की गई कि किसी भी मुल्क को हक नहीं कि वो दूसरे मुल्क की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करे या हमला करने की धमकी दे। दुनिया के तमाम मुल्कों को चाहिए कि इस तरह की गैर कानूनी हरकतों को रोकने के लिए मिलकर काम करें। ईरान के एनवॉय ने कहा कि अगर इन उसूलों की पाबंदी नहीं हुई तो इंटरनेशनल कानून और ग्लोबल सिक्योरिटी दोनों का ताना बाना बिखर जाएगा। मतलब साफ है कि ईरान ने IAEA के स्टेज से दुनिया को अलर्ट कर दिया है और साफ कह दिया है कि आइंदा न्यूक्लियर साइट्स पर हमला या कोई धमकी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल ये थी कुछ खबरें जो फैक्ट के साथ ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से और तमीज़ के दायरे में आपके सामने रखती। खबरें अच्छी नहीं होती कभी भी, बस नज़रिया होता है कि आपको पसंद आती हैं या नहीं। मेरी कोशिश पसंद आई हो तो बताइएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।